Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Farooq, your instructor for GIS and remote sensing. We are entering in week 2 and this is lecture number 1 that is related to maps and georeferencing. In the previous lecture, we talked about the introduction of this subject and we defined what is GIS and what are the different components of GIS and what are the basic application of GIS in different fields and especially in the earth sciences and engineering area. And then we talked about the remote sensing, what is remote sensing and what are the different principles of remote sensing, what are the different platforms available to perform remote sensing, and what are the different applications of remote sensing, especially in earth sciences and engineering area. So this is what we talked about in the previous lecture, and hopefully everybody will be understood about the basics of this course, and definitely that will help you people to further have a in-depth understanding about GIS and remote sensing, so that you can utilize this subject in your field. So the basic now this for this week we are going to start GIS and its basic principles, and we will elaborate those principles and what are the different components and how we perform the different type of analysis based on GIS. So the first most important thing is maps. So we know that GIS is used to create maps, to perform different analysis on the maps, and to get the results as output based on the analysis as a map, right? So first of all, we need to understand what are the different types of maps available in the market so far, and how we do the georeferencing and what is georeferencing, and because this is the very basic thing we need to understand, so that we can use this knowledge for the other activities those we are going to perform by using some GIS software. So first of all, we need to refresh our knowledge about the maps. So maps are used, for thousands of years to represent information about the real world, and continue to be extremely useful for many applications in various domains. So this is very important thing. First of all, we need to understand how the maps are prepared, especially the maps those were used in the past. So a map can be defined as it is the most efficient shorthand. So what is this? It is shorthand, efficient shorthand that is used to show locations of the objects or features or entities with attributes. It means with legends, a graphical representation of the spatial structure of a physical and cultural environments. So it also shows the spatial structure of a physical and cultural environments where do we live. So mapping is abstraction process by which real world objects are measured, documented and stored on a medium. So what is the medium? Medium is actually a paper. ठीक है, तो आप करते क्या हैं इसमें, मतलब ये एक एब्स्ट्रक्शन प्रोसेस है जिसमें हम रियल वर्ल्ड को डिपिक्ट करते हैं किसी भी पेपर के ऊपर. And we already know that the real world is very complicated thing, very complex thing. It has lot of information, so we cannot project all of the information on the same map, right? फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम whatever the information is required to display on the map, we extract that information from the real world.
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रोड्स का मैप बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से रोड्स को डिजिटाइज कर लेंगे, कहाँ कहाँ पे रोड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रोड्स का एक नेटवर्क जो है वो उसका मैप बन जाएगा। उसके बाद डिफरेंट लोकेशंस हैं, ठीक है। तो वो जो लोकेशंस हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस, अब ये देखेंगे मैपिंग क्या प्रोसेस है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस बाय विच रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये रोड्स हैं, आर मेयर्ड। जाहिर है कि जब आप मेजर करेंगे तो फिर उसी उसी एक्सटेंट को आप यहाँ पे मैप कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको जो डिफरेंट जो लोकेशंस हैं, जो डिफरेंट फीचर्स हैं, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी आपको पता होगा, तो फिर आप मैप के ऊपर उसको डिस्प्ले करेंगे, राइट। So such information is stored on a medium. It means कि जो मैपिंग का जो मीडियम है that may be different. Like जो हमारे पास हार्ड फॉर्म में मैप है वो पेपर की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में भी मैप्स होते हैं, और जो सॉफ्ट फॉर्म में मैप्स होते हैं उन्हें आप डिजिटल मैप्स भी कहते हैं। और वो जो डिजिटल मैप्स हैं वो आपके जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, और वो उन मैप्स को आप डायनामिक मैप्स भी कहते हैं, राइट। और जो आपके पेपर बेस्ड मैप्स होते हैं उनको आप स्टैटिक मैप्स भी कहते हैं, जो कि आप चेंज नहीं करते। किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आपने उसको पब्लिश किया है तो वो मैप जो है वो ऑब्वियसली बाद में उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैप के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेफिनेटली पुरानी होती जाएगी। उसके बाद अगर आपने नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो आपको एक नई पब्लिकेशन करनी पड़ेगी, आपको नया मैप पब्लिश करना पड़ेगा, राइट। सो इट मीन्स कि जो आपके पास मैप्स होते हैं हार्ड फॉर्म में उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी चेंज उसमें चेंजेस कब करेंगे, उसके लिए आपको फिर एडिशनल जो है वो एक पब्लिकेशन करनी पड़ेगी, उसको टाइम के साथ आपने नई इंफॉर्मेशन को उसके अंदर ऐड करना होगा। तो एक मतलब डिफरेंट टाइम पे फिर वो आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो इट मीन दैट इज अ जो आपका हार्ड फॉर्म में मैप होता है या जो पेपर बेस्ड मैप है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक मैप। लेकिन जो जीआईएस बेस्ड मैप होता है जो आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड है कंप्यूटर के अंदर है, दैट इज अ डिजिटल मैप। और डिजिटल मैप जो है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप I mean whenever the latest information is available you can update that map। अब उस मैप को आप अपडेट कर सकते हैं, उस मैप को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उस मैप में से आपने जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डिजिटल मैप्स होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। एंड नाउ another thing that we need to know, digital maps ingredients। तो इंग्रेडिएंट्स में आई मीन वी ऑलरेडी नो दैट कि जैसे कि एक जो फीचर होता है जिसको आप एंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो एंटिटी है वो जब डिस्प्ले की जाती है मैप के ऊपर, इट मींस कि वो ऑब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट जिसको आप जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जो है वो मैप के ऊपर शो करना चाहते हैं। सो दैट इज द एंटिटी। इट मीन दी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद उससे रिलेटेड है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन कि जो आप लेजेंड्स देते हैं मैप के ऊपर, उन लेजेंड्स के अंदर आप मैप्स में जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, right? And then another important thing is the relationship। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एंटिटी और एट्रीब्यूट के अंदर आपके क्या कोऑर्डिनेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिफरेंट एंटिटीज को डिफरेंट कलर्स के साथ शो किया है, फिर जो एट्रीब्यूट टेबल है उसमें आपने डिफरेंट कलर्स को लेजेंड्स में लिख के, तो फिर आप क्या करेंगे उसके डिफरेंट जो भी कलर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको आप नाम देंगे, उसको सिंबल देंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब आप विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं तो फिर आप एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं, ये जो कलर है वो ये वाली इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो जियोलॉजी का मैप है तो आप डिफरेंट कलर्स में जियोलॉजी को शो करेंगे, और उसके बाद आप रिलेशनशिप आप देख लेंगे कि जो लेजेंड्स में इंफॉर्मेशन गिवन है डिफरेंट कलर्स के अंदर डिफरेंट फॉर्मेशंस को जो शो कर रही है वो मैप के ऊपर कहाँ कहाँ पे वो फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, राइट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैप स्केल्स। सो स्केल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। जो मैप स्केल होता है इस पे आपने ये देखना होता है कि किस एक्सटेंट के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल मैप खोलें तो गूगल मैप में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे गूगल मैप को टाइप करेंगे तो आपके पास पूरे वर्ल्ड का मैप आ जाएगा आपके डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है।
तो ऐसे मैप्स को हम कहेंगे स्मॉल स्केल मैप्स। ठीक है, स्मॉल स्केल मैप्स का मतलब ये होता है कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वहां पे वो बहुत छोटी नजर आ रही होती है मैप के ऊपर। ठीक है, इस मीन्स कि ये स्मॉल स्केल मैप्स। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि आपको मेजर कॉन्टिनेंट्स नजर आएंगे, जो बड़ा मैप अगर आप ग्लोब का देखें, और उसके अंदर या कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज वहां पे नजर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे मैप्स को हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप्स, जिसके अंदर एरिया ज्यादा होता है लेकिन इंफॉर्मेशन कम होती है। ठीक हो गया। उसके बाद एक मैप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स वो होते हैं जिनमें एरिया कम होता है लेकिन इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, डिटेल ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप गूगल मैप को जूम करेंगे, लेट्स सपोज आप पाकिस्तान के ऊपर लेके आ जाते हैं, तो उसके बाद उसको आप फर्दर जूम करते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि स्ट्रीट के मैप्स भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। किसी सिटी के अंदर स्ट्रीट्स के मैप्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, रोड्स के मैप्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मैप को हम कहेंगे लार्ज स्केल मैप, जिसके अंदर आपके पास जो साइज ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा है लेकिन एरिया कम है। राइट। और अगर आप ग्लोबल मैप को देखेंगे तो उसमें हमें सिटीज नहीं नजर आएंगे, उसमें हमें रोड्स नजर नहीं आएंगी, मेजर रोड्स के अलावा, और उसके अंदर आपको स्ट्रीट्स नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो उसमें जो डिटेल है फिर वो उसके अंदर से जो है वो आप नहीं देख सकते। राइट। तो जो मैप का जो स्केल है वो आप डिफरेंट तरीकों से मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैप स्केल का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आपने देखा होगा कुछ मैप्स के ऊपर इस तरह से डिवीजन लिखी होती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो किसी मैप के ऊपर जो एंटिटी है उसका साइज जो है वो 100 टाइम कम करके दिखाया गया एक्चुअल साइज से। मतलब लेट्स सपोज कि एक जो रोड है वो आपकी 100 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, 100 किलोमीटर जो लॉन्ग रोड है उसको आप मैप के ऊपर जब शो करते हैं तो लेट्स सपोज आप उसको 1 मीटर शो करते हैं। 1 मीटर जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है आपके 100 किलोमीटर्स को इन रियल। राइट। तो इस तरह से मैप्स का मतलब ये है कि क्योंकि सारी चीजें जो मैप्स की जो रियल वर्ल्ड की सारे जो साइजेस हैं वो आप एज इट इज मैप के ऊपर सेम साइज में तो नहीं लेके आ सकते ना। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उन साइजेस का स्केल बनाते हैं कि उसी साइज मतलब उसका जैसे कि उसका प्रोटोटाइप बना लिया आपने। सपोज कि एक जो रोड है वो 100 किलोमीटर लॉन्ग है, तो आपने उसको शो कर दिया मैप के ऊपर 1 मीटर लॉन्ग। राइट। तो इस तरीके से आप मैप के स्केल को डिफाइन करते हैं कि आपने रियल साइज जो जो आपके डिफरेंट थिंग्स हैं रियल वर्ल्ड में वो कितनी है और आप उसको मैप के ऊपर कितनी बड़ी दिखा रहे हैं। राइट। तो इस तरह से मैप का जो यूजुअल स्केल होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है या इंचीज में होता है। एक चीज जो है वो कितने थाउजेंड्स ऑफ सेंटीमीटर्स की इन रियल है, लेकिन मैप के ऊपर जो है वो उसी तरह से कितनी छोटी करके दिखाई गई है। तो इसको कहते हैं मैप स्केल। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ मैप। जैसे हम मैप्स को डिस्कस कर रहे हैं तो दिस इज काइंड ऑफ मैप। आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास अब ये जो मैप है ये किसी कंट्री की बाउंड्रीज को दिखाने के लिए, उसके अंदर प्रोविंसेस को दिखाने के लिए और उसके अंदर जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट एरियाज उनको दिखाने के लिए इस तरह के जो मैप्स हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस गिवन है, इसमें मेजर रिवर्स गिवन है। ठीक है, उसके बाद प्रोविंशियल बाउंड्रीज गिवन है, और उसके बाद आपके पास जो है ना वो रोड्स जो मेन है वो गिवन है, और उसके बाद जो डिफरेंट अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लेजेंड्स की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। और इसमें एक दूसरा मैप भी है, ये मतलब एक और एरिया है जिसको मतलब रिसेंटली पाकिस्तान जो है उसने उसको डिस्प्यूटेड करार दिया है कि ये भी पाकिस्तान का ही एरिया है। तो उसके हिसाब से उसको भी शो किया गया है। ये रिसेंट मैप है जो कि पाकिस्तान ने पब्लिश किया है। All right, so this is another type of map. You can see that this is a geologic map. अब जियोलॉजिक मैप में क्या है कि डिफरेंट कलर्स में आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये सैंडस्टोन है, ये सैंडस्टोन शेल इंटरबेडिंग है। फिर उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट अदर फॉर्मेशन है, उसको लेजेंड से शो किया गया है। फिर उसके बाद इसके अंदर अदर फीचर्स भी हैं।
ठीक है, जिसमें जैसे कि ये रॉक, ये मतलब मैस वेस्टिंग के फीचर्स यहाँ पे गिवन है, जैसे कि रॉक फॉल है, लैंडस्लाइड डिपॉजिट है, उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं उसे, फिर उसके बाद ड्रेनेज है, रोड्स हैं, कॉन्टूर्स हैं। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ मैप, राइट, कि जिसमें किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ कलर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ लेजेंड्स। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है, यहाँ पे ये देखिए कि डायमेंशन, जो डायरेक्शन है, सॉरी डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ की शो की गई, हर मैप के ऊपर नॉर्थ की डायरेक्शन शो की जाती है ताकि आप अदर कोऑर्डिनेट्स को मैप के ऊपर इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें। और उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्केल। अब ये जो स्केल है ये आपके ख्याल में लार्ज स्केल है या कि स्मॉल स्केल मैप है? तो ये कौन सा मैप है? ये आपका लार्ज स्केल मैप है, इसको हम कहेंगे लार्ज स्केल मैप, ठीक है, लार्ज स्केल मैप, LSM, क्योंकि इसके अंदर एरिया कम है लेकिन इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ठीक है, डिटेल ज्यादा है। So this is how you can divide the maps type based on its resolution. Like लार्ज स्केल मैप में क्या होगा कि ये जो 1 यूनिट है वो एक्चुअल जो आपका फील्ड के अंदर जो एरिया है, ये जो आपकी उसके ऊपर जो लेंथ है, ठीक है, उस लेंथ या उस साइज को जो है वो अगर उसकी प्रपोर्शन बहुत ज्यादा ना हो, देखिए ये इतनी ज्यादा प्रपोर्शन नहीं है, 1:1000, 1:5000 या 1:10,000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो है ना वो मैप के ऊपर वो 10,000 यूनिट्स एक्चुअल को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मैप्स को हम क्या कहेंगे, ये आपके स्मॉल स्केल मैप, सॉरी लार्ज स्केल मैप्स, ठीक है। इसमें आप डिटेल में छोटे छोटे फीचर्स भी देख सकते हैं लेकिन एरिया इसका कम है, ये आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्विज में भी आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास है मीडियम स्केल मैप्स। मीडियम स्केल मैप्स में क्या है कि ये आपके स्मॉल और लार्ज स्केल के इन बिटवीन, इसमें फॉर एग्जांपल आप कंट्रीज की बाउंड्रीज देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोविंस के बारे में जो मैप होता है वो मीडियम स्केल मैप हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर एरिया बढ़ जाता है लेकिन इंफॉर्मेशन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर फिर आप स्ट्रीट्स को नहीं देख सकते, मेजर सिटीज के रोड्स को देख सकते हैं, सिटीज के नाम को देख सकते हैं, किसी प्रोविंस का मैप है। लेकिन जब आप स्मॉल स्केल मैप्स पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर आप जो है वो क्या कहते हैं उसे, कंट्रीज की बाउंड्रीज देखेंगे, आप कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्रीज देखेंगे, और उसके अंदर जो डिटेल है मैप की, जो अदर डिटेल जैसे स्ट्रीट मैप्स हैं, स्मॉलर एरियाज के नाम है, वो सारे उसके अंदर शो अप नहीं होंगे। इसमें इट मीन्स जो स्मॉल स्केल मैप्स हैं उसमें एरिया बहुत ज्यादा होता है लेकिन क्या है कि इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, ठीक हो गया। तो मैप के स्केल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस इज वन वे, ये है क्या कहते हैं उसे, फ्रैक्शन रेशियो, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन रेशियो। फ्रैक्शन रेशियो में आप इसको इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, या इसको रेशियो या प्रोपोर्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वन वे है। दूसरा वे है कि आप मैप को जो है वो डिविजन्स की फॉर्म में इस तरह से भी शो करते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं। और ये जो है ये आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में, ये डिवीजन की फॉर्म में, ये रेशियो की फॉर्म में है। और उसके बाद ये जो मैप है ये आपका जो है वो ये जो स्केल है वो, ये आप यूजुअली यही स्केल ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि आप एक बार दे देते हैं, स्केल बार दे देते हैं, और इसकी मदद से भी आप स्केल को शो करते हैं, ठीक है। तो ये स्केल जो है स्केल बार जो है उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट हो सकती है, जीआईएस के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, उसको यूज करके आप मैप के स्केल को यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, सो मैपिंग प्रोसेस, अभी हम जीआईएस को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैप। मैप के बाद उससे रिलेटेड स्केल, स्केल के बाद आ जाता है कि उसका कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे मैपिंग प्रोसेस, मैप आप जनरेट कैसे करते हैं, मैप को जनरेट करने से पहले सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ता है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू अचीव, राइट, और रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल आपने सर्वेइंग करनी है, माइनिंग में या जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में जब आप सर्वेइंग करते हैं, जैसे आप एबटाबाद जाते हैं
तो सबसे पहले आप प्लान करते हैं कि किस एरिया की आपने सर्वेइंग करनी है, किस एरिया की आपने टोपोग्राफिक शीट बनानी है। तो ये सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद आप उसमें देखेंगे कि मैप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कैसे करनी है। ठीक है, एक तो ये कि कितने एरिया की मैपिंग करनी है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपने कलेक्ट करने के लिए आपने कौन कौन से सर्वे के इक्विपमेंट यूज करने हैं, आपके पास टाइम कितना है। तो ये प्लानिंग स्टेज। उसके बाद आपके पास है डेटा एक्विजिशन। फिर आप डेटा एक्विजिशन के लिए क्या करते हैं, आप फील्ड के अंदर जाते हैं। फील्ड के अंदर जाके आप डेटा को जो है वो वहाँ पे एक्वायर करते हैं, राइट। जब आप डाटा को एक्वायर करते हैं, इट मीन्स आप वहाँ पे लेवलिंग करते हैं वर्टिकल एलिवेशंस के लिए। फिर उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल कंट्रोल वहाँ का वर्टिकल कंट्रोल करके डिफरेंट इक्विपमेंट्स के जरिए आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप थर्ड फेज आई थी कार्टोग्राफिक फेज। तो कार्टोग्राफिक फेज जो है वो भी आप फील्ड के अंदर भी आप उसको फील्ड बुक में जब आप नोट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उसको जब वापस आते हैं तो शीट्स के ऊपर फिर आप क्या करते हैं, वो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और उन फीचर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ पे लेजर्स की फॉर्म में उसको आप प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट डिलीवरी, जब मैप आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको सबमिट करते हैं। ठीक है, so this is the pretty standard procedure that is required uh, to adopt while doing the maps in I mean in real life, like on the paper. And also this is the same concept that is being used in the soft form, जो आप GIS के अंदर मैपिंग करते हैं उसका भी यही प्रोसीजर है। So this is the more elaboration of the 4 steps। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो यहाँ पे प्लानिंग में क्या होगा कि वही चीज़ें कि आपने प्रोजेक्ट को पूरा डिफाइन करना है कि आपने सर्वेइंग कैसे परफॉर्म करनी है, डाटा की एक्विजिशन कैसे करनी है, उसमें आपने सर्वेइंग करनी है या आपने फोटोग्रामेट्री करनी है, रिमोट सेंसिंग करनी है, स्कैन डिजिटाइजिंग है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डाटा एक्विजिशन के तरीके हैं, राइट। तो हमने सर्वेइंग की एग्जांपल जो है वो यहाँ पे डिस्कस की है। उसके बाद आपने उसको पेपर के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने अगर तो आपका मैप जो है वो एरर फ्री है, फिर आप उसको डिलीवर करेंगे या आप उसको सबमिट करेंगे। अगर उसके अंदर कुछ एरर्स हैं तो फिर आप उसको दोबारा से देखेंगे। और अगर आपके पास GIS में आपने कोई मैप बनाया है और उसके बाद लेट्स सपोज कुछ अरसे के बाद आपके पास नई इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर आप उसी मैप को रिवाइज भी करते हैं, राइट। All right, so now we have talked about what is a map and what are the different type of maps। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि स्केल ऑफ द मैप जो है वो उसकी बेस पे भी आप मैप्स को किस तरह से जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है कि मैप जो है वो जब आप जो है उसको क्रिएट करते हैं तो उस वक्त आपके पास कोई रेफरेंस होना चाहिए कि एक चीज की जो लोकेशन है वो दूसरी चीज की लोकेशन से आप किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। सो वी शुड हैव अ काइंड ऑफ रेफरेंस। ठीक है, किसी भी चीज की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए। जैसे आप यहाँ पे सर्वेइंग करते हैं, यहाँ पे ग्राउंड में या बिल्डिंग की आप यहाँ पे सर्वेइंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट से UED के अंदर। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें बेंच मार्क्स यूज करते हैं जो कि टीचर आपको प्रोवाइड कर देता है कि ये पर्टिकुलर बेंच मार्क है, इसकी एलिवेशन ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो उसकी बेस के ऊपर आप बाकी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी जो एलिवेशन है उसको इस्टेब्लिश करें। ठीक है, तो इट मीन्स यू नीड टू हैव अ रेफरेंसिंग। So precisely speaking, for the for the maps you need to have some sort of georeferencing। ठीक है, georeferencing का मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स आपके जो डिफरेंट जो पूरी दुनिया में यूज होते हैं डिफरेंट एरियाज की लोकेशंस को, प्लेसेस की लोकेशंस को शो करने के लिए, आपने वो जो जियो रेफरेंसिंग है वहां पे मैप के ऊपर उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इट मीन्स के जो डिफरेंट जो आप फीचर्स जो है वो मैप के ऊपर शो करते हैं उसकी उसकी जियो रेफरेंसिंग होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया किस डायरेक्शन में कितना दूर है किस पर्टिकुलर एरिया से। जैसे आप गूगल मैप खोलेंगे तो उसमें आपको
जब आप राउट करते हैं जी लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो वो आपको राउट पूरा जो है वो जूम इन हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कहाँ से कहाँ जाएंगे, किस रोड को लेंगे और किस तरीके से वहाँ पहुँचेंगे। तो ये सारी जियो रेफरेंसिंग की बेस के ऊपर ही जो है वो एक्टिविटी गूगल जो है वो परफॉर्म करता है, राइट। So what is georeferencing? Representation of the location of real world features within the spatial framework of a particular coordinate system. Spatial का मतलब जहाँ पे आपको जो है वो coordinates की जरूरत है, ठीक है। Spatial framework of a particular coordinate system. Progressive transformation from irregular 3D to a 2D flat surface of the map. जियो रेफरेंसिंग में एक्चुअली आप कर क्या रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने ग्लोब को देखें तो जो ग्लोब है आपका या जो आपकी जो अर्थ सरफेस है इट इज अ काइंड ऑफ स्फीयर, ठीक है। और आपकी जो सरफेस है ये इरेगुलर है और स्फीयर मीन इट इज अ 3D सरफेस। जो आपका जो अर्थ सरफेस है या जो टोटल जो आपका जो शेप है प्लैनेट की आपकी दैट इज स्फीरॉइडल, ठीक है। स्फीरॉइडल का मतलब क्या हुआ कि ये 3D सरफेस है। लेकिन जब आप मैप पे लोकेशंस देखते हैं तो वो तो 2D सरफेस है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ती हैं ताकि आपके इरेगुलर जो अर्थ है 3D फॉर्म में उसको 2D फॉर्म में मैप की जो है वो कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ जियो रेफरेंसिंग के जो डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम थे उसको यूज किया जाता है, ठीक है। सो इट मीन्स कि जब आप जियो रेफरेंसिंग की बात करेंगे तो फिर आप इस चीज की भी बात करेंगे कि 3D सरफेस ऑफ द अर्थ जो है उसको किस तरह से 2D फ्लैट मैप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो irregular shape of the earth makes it impossible to transform geometric relationship from 3D to 2D map surfaces. तो एक्चुअली जो इरेगुलर अर्थ की जो सरफेस है अगर आप बिगर पिक्चर में देखें तो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते 2D के अंदर। तो लेकिन आपको करना क्या पड़ता है, आपको डिफरेंट मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स यूज करने पड़ते हैं। उन मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स की वजह से फिर आप डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, डिफरेंट आप अजम्पशंस जो हैं वो उसकी बेस के ऊपर फिर आप क्या करते हैं कि 3D सरफेस को 2D में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने जो अजम्पशन करनी वो क्या है, कंसेप्चुलाइजिंग द अर्थ एज सिंपल solid shape that can be represented mathematically, ठीक है। मैथमेटिकली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कैसे। अब जो ओवरऑल अर्थ है वो इरेगुलर है, अर्थ की जो शेप है वो इरेगुलर, लेकिन आपने उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू उसको उसकी जो सरफेस है उसको राउंड करना है, आपने उसमें से शार्प किंग्स को रिमूव करना है। लेट्स सपोज अगर आपकी सरफेस जैसे माउंटेन्स हैं वो इस तरह से नजर आएंगी आपको अर्थ की सरफेस के ऊपर, आपने इसको एवरेज आउट करना है, लाइक इस तरह से ये मॉडलिंग करके आपने इसको एवरेज आउट करना है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग है जो आपको करनी पड़ती है। तब क्या होगा कि आप 3D को 2D में कन्वर्ट करेंगे और उसमें भी आपके पास एरर्स इंड्यूस होंगे और उसको भी आपने एडजस्ट करना है। So there is a very important concept that is called as ellipsoid geoid model. So ellipsoid geoid model जो है ये क्या चीज है, ठीक है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो एज वी नो दैट कि सरफेस जो अर्थ की है वो इरेगुलर है। जैसे लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो सरफेस है अर्थ की वो क्या इरेगुलर है, ये एक्चुअल सरफेस शो की गई है। ये एक स्पेसिमेन एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें फिर आप ये देखिए कि इसके अंदर एक ये एवरेज सरफेस है, ये देखिए ये एक और ब्लू कलर की सरफेस है, ठीक है। ये इस वाली सरफेस को एक्चुअली ये एवरेज आउट कर रही है, ठीक है। इसमें से किंग्स को रिमूव कर रही है ये वाली सरफेस, ये जो है इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे जी ऑइड, ठीक है। इसे आप कहेंगे जी ऑइड, ठीक हो गया। उसके बाद एक और सरफेस है ये उससे भी ज्यादा फ्लैट है, ये वाली, इसको करेंगे एलिप्सॉइड, ठीक है।
इन दोनों सरफेसेस की बेस के ऊपर एक मॉडल बनेगा जिसे आप कहेंगे जियोइड एलिप्सॉइड मॉडल। ठीक है, ये जो है, या एलिप्सॉइड जियोइड मॉडल। सो ये मॉडल जो है ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स और फार्मूलाज को लगा के अर्थ की जो इंतहाई इरेगुलर शेप है उसको वो किसी ना किसी रिप्रेजेंटेशन में लेके आ रहा है जिसमें वो किंग्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, किंग्स को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हमने करना क्या है, एक्चुअली हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि वर्टिकल डेटम कहाँ से आया और हॉरिजॉन्टल डेटम कहाँ से आया। वो जो डेटम्स हैं एक्चुअली वो बेंचमार्क्स हैं किसी भी मैप के ऊपर जो है वो जियो रेफरेंसिंग के लिए। So this is the reason why we are talking about this stuff in GIS, because GIS is all about to represent different type of information on the map with respect to some sort of georeferencing। और georeferencing के लिए आपके पास datums होना जरूरी है। So this is the reason why I am talking about this। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये आपकी जो रेफरेंस बुक है जो आपसे ऑलरेडी मैंने शेयर की है उसके अंदर ये गिवन है। ऑलराइट, सो जियोइड क्या है? नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज जियोइड। जियोइड, उसके बाद हम फिर उसको भी डिस्कस करेंगे कि एलिप्सॉइड का क्या मतलब। जियोइड मीन अर्थ लाइक एंड वर्टिकल डेटम। ठीक है, जियोइड मीन अर्थ लाइक एंड वर्टिकल डेटम। क्या मतलब? Geoid is actually a single undisturbed sea level, ठीक है, covering the entire earth surface and adjusted to the gravity। मतलब जो आपका मीन सी लेवल है, अगर आप उसको पूरा मतलब उसको कवर करें पूरी अर्थ के ऊपर, मतलब उसमें अगर उसकी इमेजिनरी लाइन आप लगाएं जो है वो कॉन्टिनेंटल जो आपके पास एरिया है उसके ऊपर भी, तो ये एक अनडिस्टर्ब सी लेवल की जो लाइन है ये सिंगल अनडिस्टर्ब, ठीक है, और जिससे आप एलिवेशन का जो है उसको डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी भी जगह पे किसी पीक की एलिवेशन है 700 किलोमीटर, 700 मीटर, ठीक है, 700 मीटर का मतलब ये है कि मीन सी लेवल से ये 700 मीटर अबव है। अब वो जो मीन सी लेवल की जो वो जो लाइन है वो इमेजिनरी आपकी आपके कॉन्टिनेंटल पार्ट के अंदर भी है, आप उसको देखते हो कि मीन सी लेवल की जो लाइन है वो कहाँ पे कहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो वो इमेजिनरी लाइन आप वर्टिकल जो आपका कॉन्टिनेंटल मास है उसके ऊपर भी आप उसको एक्सटेंड करते हैं, तभी आप वो मीन सी लेवल से आप डिफरेंट एरियाज की एलिवेशंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और उसको आप एडजस्ट करते हैं अगर आप उसको एडजस्ट करें ग्रेविटी के हिसाब से, तो इट मीन्स के ग्रेविटी के हिसाब से ये जो लाइन है ये थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी। कॉन्टिनेंटल जो एरिया है उसमें थोड़ी सी ऊपर को जाएगी, और जो आपके पास जो ओशियानिक एरिया वहाँ पे ये जो लाइन है थोड़ी नीचे को जाएगी, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो, क्योंकि जो आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो थोड़ा मैसिव है और वो लाइटर है एज कंपेयर टू दी ओशियानिक जो आपका क्रस्ट है उससे। So this is a kind of equipotential surface. The gravity potential is everywhere constant and the gravity direction is vertical. Geoid rises over continent. This is very important thing. बाद दफा questions ऐसे आ जाते हैं जो quizzes में भी आ जाते हैं, you know. Geoid rises over continents, thicker crust and depressed over ocean, thinner crust. Geoid coincides with the mean sea level in the open oceans। ठीक है, ये रेफरेंस फिगर्स हैं, इसको आप देख लें बुक के अंदर। ऑलराइट, एंड व्हाट इज एलिप्सॉइड? एलिप्सॉइड जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो जियोइड है दैट इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस सरफेस फॉर वर्टिकल डेटम। जो एलिवेशंस को डिफाइन करने के लिए हम जो डेटम यूज करते हैं वो जियोइड की बेस पे होता है। और एलिप्सॉइड क्या है कि दैट इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस सरफेस फॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशंस के लिए जो आप हॉरिजॉन्टल जो कंट्रोल जो है डिफरेंट पॉइंट्स का आप करते हैं उसके लिए आप एलिप्सॉइडल मॉडल को यूज करते हैं, एलिप्सॉइड को आप यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें फिर क्या होता है, ये इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल डेटम के लिए आप एलिप्सॉइड्स को यूज करते हैं। अर्थ इज स्लाइटली, अब एक और चीज ये है कि अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज इट मींस इट इज कॉल्ड एज ऑब्लेट स्फीरॉइड। ठीक है, कि ये आपका क्या है, ये जैसे ये है, ये आपका जो ये जो
ये जो इक्वेटोरियल जो आपके पास प्लेन है या जो इक्वेटर है, यहाँ पे ये फ्लैट है, ठीक है। सॉरी, ये पोल्स पे ये फ्लैट, ये पोल्स जो है, पोल वाला जो एरिया है ये ज़्यादा फ्लैट है एज कम्पेयर टू द इक्वेटर, ठीक है। और लेकिन और फिर उसके बाद ये कि ये जो आपका एक्सिस है जो इक्वेटर में से गुजरता है, इसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। और जो आपका एक्सिस ऊपर की तरफ पोल की तरफ जाता है, इसे हम सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। और ये जो एक्सिस है ये कम होता है आपके जो सेमी मेजर एक्सिस है इक्वेटर में से जो गुजरता है, ठीक है। सो सो अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ठीक है। और इक्वेटर के ऊपर जो है वो कम फ्लैटेंड है, ठीक है। सो अर्थ कैन बी प्रॉक्सी, इसको ऑब्लेट स्फीरॉइड कहते हैं, ठीक हो गया। अर्थ कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय द रोटेशनल एलिप्सॉइड, rotation of an ellipse around its minor axis, ठीक है। सो जो अर्थ की जो शेप है वो कह रहा है कि उसको माइनर एक्सिस के अराउंड अगर आप इसको इसी मतलब माइनर एक्सिस के अराउंड आप रोटेट करें एक स्फीयर को, ठीक, सॉरी एक एलिप्सॉइड को, इसको, तो उससे उसको अगर आप रोटेट करते हैं तो जो भी माइनर किंग्स और जो इरेगुलरिटीज हैं तो उसको आप ट्रिम करते जाते हैं। आप उसको ट्रिम करके तो एक सरफेस इमेजिनरी क्रिएट कर लेते हैं और आप ये कंसीडर करते हैं कि जो अर्थ है वो एक एलिप्सॉइड की फॉर्म में, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपका रेगुलर है, जैसे ये देखेंगे बिल्कुल रेगुलर, लेकिन एक्चुअल शेप आप ये देखेंगे वो ये है, ये आपकी एक्चुअल शेप है। लेकिन यहाँ पे देखें बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, लेकिन ये एक इमेजिनरी सरफेस है जो आप बनाते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू, जिससे आप अर्थ को इस तरह से समझते हैं कि वो एक एलिप्सॉइड है, ठीक है। उसकी बेस के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल कंट्रोल किसी भी एरिया का इस्टेब्लिश करते हैं। सो यू नो दैट कि आप ये चीजें क्या शो कर रही है कि वी नीड टू डू लॉट ऑफ अप्रोक्सीमेशंस अबाउट डिफरेंट थिंग्स, तब जाके आप जियो रेफरेंसिंग जो है वो मैप के ऊपर इस्टेब्लिश करते हैं। ऑल राइट, सो रेफरेंस सरफेस फॉर हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स जो है ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के लिए एलिप्सॉइड जो है वो प्रोवाइड करता है। जो एलिप्सॉइड होते हैं वो जियोसेंट्रिक भी होते हैं और अर्थ सेंटर्ड एलिप्सॉइड्स भी होते हैं। जियोसेंट्रिक का मतलब ये कि किसी पर्टिकुलर जो सरफेस, जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है उसके विद रेफरेंस अगर आप कोई एलिप्सॉइड डिफाइन करते हैं तो उसको जियोसेंट्रिक कहते हैं। और एक होता है अर्थ सेंट्रिक, अर्थ सेंटर्ड, नहीं सॉरी, इसको रिवर्स करें कि जियोसेंट्रिक और अर्थ सेंटर्ड का मतलब ये कि आप सेंटर ऑफ द अर्थ से उस एलिप्सॉइड को बनाते हैं, ये ठीक है। ये इसको आप इस तरीके से समझें, ठीक हो गया कि सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वहां से आप उस एलिप्स को डिफाइन करते हैं। इसको आप कहते हैं जियोसेंट्रिक और अर्थ सेंटर्ड। जो आपका कोर में जो पॉइंट है वहां से आप इसको डिफाइन करते हैं। और आप देख सकते हैं जो एलिप्सॉइड है इसका रेडियस जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है किसी पर्टिकुलर एरियाज में। आप देखेंगे पोलर की तरफ सबसे थोड़ा होगा और इक्वेटर पे आके मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो डिफाइन करते हैं एलिप्सॉइड को। तो सबसे पहले यूएसजीएस जो है उसने जो स्टैंडर्ड जियो रेफरेंसिंग है उसके ऊपर काम किया और उसकी मदद से फिर उन्होंने क्या किया कि अपने यूएस के लिए उन्होंने जो जियोडेटिक रेफरेंस सिस्टम्स को डिफाइन किया, जिसे जीआरएस कहते हैं, जीआरएस 80। ये एक्चुअली ये 1920s में इन्होंने ये इस तरह के सिस्टम्स को डेवलप करना शुरू किया था, लेकिन लेटर ऑन इन्हीं के जो सिस्टम्स थे उनको 80s में 90s में जो है वो ग्लोबल जो आपका जो जियोडेटिक सिस्टम है वहाँ पे उसमें फर्दर करेक्शंस करके उसको ग्लोबली जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। सो डिफरेंट कंट्रीज के अपने भी जियो रेफरेंसिंग के सिस्टम्स हैं, थोड़े से हम उसको डिस्कस भी करेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट कि आपके पास आपने वर्टिकल कंट्रोल लेना तो आप जीओइडल मॉडल लेंगे। अब ये देखेंगे जीओइड जो है उसके अंदर भी अभी किंग्स हैं, ये देख लें, लेकिन इसमें शार्प जो एजेस है ये वाली ये इस तरह की ये रिमूव कर दी गई है, ठीक है। तो ये जीओइड है और जीओइड जो है वो ओशन के अंदर जो है वो आप मतलब जो ओपन ओपन जो सी है वहां पे जो मीन सी लेवल है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर उससे आप ऊपर जाएंगे जैसे कॉन्टिनेंट की तरफ जाते हैं तो वो एलिवेशन बढ़ती है। अगर आप ओशियानिक क्रस्ट की तरफ जाते हैं तो इट मीन्स के जो मीन सी लेवल है उससे फिर एलिवेशन डाउन होती है, वो नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। और जो एलिप्सॉइड है वो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एलिप्सॉइड है ये आपका हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के लिए,
जियोइड जो है वो वर्टिकल कंट्रोल के लिए। अच्छा, उसके बाद देयर इज अनदर डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन ये आपने सर्वेइंग में पढ़ी होगी कि एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे आपका एलिप्सॉइड और जियोइड जो है उसके जो नॉर्मल है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे जियोइड का नॉर्मल ये है और एलिप्सॉइड का नॉर्मल ये है, और जहाँ पे ये सी के अंदर कोइंसाइड करते हैं आपस में दोनों जो सरफेसेस हैं, उसके दरमियान जो एंगल बनता है, उनके नॉर्मल्स के दरमियान जो एंगल बनता है उसे कहते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी है। ठीक हो गया? एनी कन्फ्यूजन? यू आर वेरी वेलकम। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, यू आर वेरी वेलकम, आप इस लेक्चर को रिमाइंड करके भी देख सकते हैं, वो चीज़ आप समझ सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आती, यू आर वेरी वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर आवर्स, और उसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप गूगल जो आपका क्लासरूम है वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। ऑल राइट, सो हाउ वी डू दी जियो रेफरेंसिंग। उसके लिए फिर आपने करना क्या है कि एक आपके पास जियोइड सरफेस है, ठीक है, जियोइड सरफेस के ऊपर फिर आप एलिप्सॉइड जो है जो आपके पास। अच्छा, ये भी चीज़ याद रखनी कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स अवेलेबल गिवन बाय डिफरेंट मैथमेटिशियंस, दोज प्रोवाइडेड द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिप्सॉइड्स। अब उनके जो एलिप्सॉइड्स हैं वो उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है, तो एक से ज्यादा एलिप्सॉइड्स अवेलेबल हैं, इसकी डिटेल आप बुक्स में पढ़ भी सकते हैं। इस जियोइड के मॉडल्स हैं उनकी भी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, और डिफरेंट मैथमेटिशियंस के जो जियोइड मॉडल हैं, एलिप्सॉइड मॉडल्स हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो आपने ये याद रखना है कि देर आर सम लोकली फिटिंग एलिप्सॉइड्स एंड देर आर सम ग्लोबली फिटिंग एलिप्सॉइड्स। ठीक है, तो अगर तो आपने लेट सपोज ग्लोबल स्केल के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को, डिफरेंट एरियाज को डिफाइन करना है, आपने उनकी जियो रेफरेंसिंग करनी है, तो फिर आपने ग्लोबली फिटेड जो आपके पास एलिप्सॉइड आप उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कि जो आपके पास ग्लोबली फिटेड एलिप्सॉइड है, वो ये वाली एग्जांपल इसकी दे रहा है कि ये जो है ना वो आपका ग्लोबली फिटेड एलिप्सॉइड। आप देखेंगे ये ओवरऑल आपका किसी जगह पे बेहतर है डिप्रेशन, किसी जगह पे डिप्रेशन हैं, किसी जगह पे किंग्स ऊपर की तरफ है जियोइड के, और इस तरीके से आप ये देखेंगे यहाँ पे जो है ना इस एरिया में आप देखें तो इसमें वो ज़्यादा बेहतर फिट नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है वो जियोइड के ऊपर ये ग्लोबली फिट हो रहा है। जैसे आप एक एवरेज लाइन लगाते हैं, मतलब किसी भी ट्रेंड की जो एवरेज लाइन लगाते हैं उसमें सारे डाटा पॉइंट आते हैं, इस तरह से जो ग्लोबली फिटेड एलिप्सॉइड्स होते हैं वो ऐसे एलिप्सॉइड्स होते हैं जो कि जियोइड के साथ मैक्सिमम जो है ना वो मैच कर रहे होते हैं उसकी लोकेशंस ओवरऑल। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबली फिटेड एलिप्सॉइड्स। सिमिलरली जब आपने किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करनी है, ठीक है, तो जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल इस एरिया की बात करें, तो फिर आपने लोकली फिटिंग एलिप्सॉइड्स भी यूज कर सकते हैं। आप वो जो लोकली फिटिंग एलिप्सॉइड्स हैं आप उसको बिल्कुल उसी पर्टिकुलर एरिया पे उसको फिट करेंगे, और उसकी मदद से फिर आप लोकेशंस को डिफाइन करेंगे, आप जियो रेफरेंसिंग को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जो लोकली फिटेड एलिप्सॉइड्स होते हैं वहाँ पे आपकी जो क्या कहते हैं उससे जो रीडिंग्स होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, लोकल एरिया के लिए वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, वहाँ पे चांसेस ऑफ एरर कम होते हैं। लेकिन जो ग्लोबली फिटेड एलिप्सॉइड्स होते हैं और जियोइड्स के जो मॉडल होते हैं वहाँ पे चांसेस जो है वो एरर के ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आपने प्रिसाइज सर्विंग करनी है तो फिर आपने लोकली फिटेड जो एलिप्सॉइड्स हैं उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो आप इसमें, लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें यह है कि जो आपका लोकली फिटेड एलिप्सॉइड होता है उसमें ये आप देखेंगे ये एरिया ऑफ बेस्ट फिटिंग है। ये देखें, ये आपका जो एरिया है वो बेस्ट फिटिंग का एरिया, और उसके बाद जो आगे एरिया आ रहा है वो ये पुअर फिटिंग वाला एरिया में देखेंगे, ये सारा जो एरिया है यहाँ से ये पुअरली फिटेड है। ठीक है, सो इट मीन्स के जब लोकली फिटेड जो फिटेड आप एलिप्सॉइड लेंगे तो वो डेफिनेटली अदर एरियाज में वो बहुत ज़्यादा एरर्स देंगे, तो वहाँ पे आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो लोकली फिटेड एलिप्सॉइड्स हैं वो आपकी लोकल रीडिंग्स के लिए यूज़ होते हैं और ये ज़्यादा एक्यूरेट भी है। अगर आप ग्लोबली फिटेड एलिप्सॉइड्स की बात करें तो उसमें डेफिनेटली वो ओवरऑल पूरी एवरेज जो आपका जियोइड है आपका उसको शो कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ये एनोटेशन में बाद दफ़ा ये ट्राइंगल से क्रिएट हो जाती है, जैसे ये है, तो ये एडिटर टूल जो है बाद दफ़ा वो डबल लाइन लगा देता है, सॉरी फॉर दैट।
So you understand now what we are talking about actually. We are talking about this कि GIS में मैप बनते हैं, ठीक है। तो मैप को पहले हमने डिफाइन किया, उसके बाद फिर हमने ये डिफाइन किया कि मैप के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसके बाद फिर मैप के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से आपने शो करना है, और उसमें फिर आपने ये देखना है कि आपका जो क्या कहते हैं उससे स्केल क्या होना चाहिए, उसको डिफाइन किया। उसके बाद फिर ये कि मैप के ऊपर इन्फॉर्मेशन आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी आप क्या करते हैं, जियो रेफरेंसिंग करते हैं। और जियो रेफरेंसिंग करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको रेफरेंस सरफेस चाहिए। और जो रेफरेंस सरफेस है उसको प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या डिस्कस किया, वर्टिकल डाटम और हॉरिजॉन्टल डाटम, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। उसमें जियोइडल एलिप्सॉइड जियोइड मॉडल जो है उसको डिस्कस किया हमने, और उसकी बेस के ऊपर फिर हम फिर डिफाइन करेंगे कि जियो रेफरेंसिंग होती कैसे। सो इट मींस दिस इज द रियल अर्थ, and what we have done after mathematical representation, this is actually the created geoid ellipsoid model, ठीक है। और ये जो जियोइड एलिप्सॉइड मॉडल जो है इसकी बेस के ऊपर आपने डाटम को डिफाइन किया, जिसमें हॉरिजॉन्टल डाटम है, वर्टिकल डाटम है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, इसके ऊपर ग्रिड्स लगा दिए। ये क्या किया आपने, ये जियो रेफरेंसिंग आपने इसके ऊपर लगा दी। अप टिल नाउ ये आपके पास क्या है, 3D है। जो अर्थ आपके पास है, जैसे आप ग्लोब के जो मतलब जो डिफरेंट मॉडल्स देखते हैं तो आपके पास वो 3D होता है, ठीक है। अब इस 3D को आपने फिर क्या करना है, मैथ के ऊपर जब आपने प्रेजेंट करना है तो ये आपके पास ये 2D आ जाएगा, ये आपके पास 2D प्लेन है, ठीक है। ये आपके पास है 3D। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 3D जियो रेफरेंसिंग भी होती है और आपके पास जो है वो 2D जियो रेफरेंसिंग भी होती है। तो जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स हैं वो एक्चुअली कर्व्ड सरफेसेस को शो करते हैं। वो आपके जो हैं वो आपके 3D सरफेस, जो 3D जो जियो रेफरेंसिंग सिस्टम है उसको शो करता है, ठीक है। सो मैप प्रोजेक्शन आप क्यों करते हैं, फिर आप उसी को मैप को आप उसको जब हॉरिजॉन्टल मतलब 2D फॉर्म में शो करते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं वो आप फिर उसके उस मैप की प्रोजेक्शन करते हैं। इस प्रोजेक्शन को भी हम इसी में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्शन क्या चीज है, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ हियर कम कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डाटम, ठीक है। डाटम क्या है, अ मॉडल डिस्क्राइबिंग द पोजीशन, डायरेक्शन एंड स्केल रिलेशनशिप्स ऑफ अ रेफरेंस सरफेस टू द पोजीशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। आपको कुछ याद होगा कि हम मतलब डिफरेंट डाटम्स यूज करते हैं। तो एक डाटम जो है जिसे कहते हैं ग्रीनविच, ग्रीनविच जो पॉइंट है उसको भी हम एक डाटम के तौर पे जानते हैं, जहां पे आपके जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या हैं दोनों क्रॉस करते हैं और उसको आप 0 0 कहते हैं, ठीक है। तो ये तो उसको आप जो है वो हॉरिजॉन्टल डाटम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल के लिए। तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के डाटम्स हैं, जैसे जियोडेटिक डाटम, जैसे जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डाटम, ठीक है। उसके बाद एक है वर्टिकल डाटम। इसका वर्टिकल मतलब इसको फर्दर आप आगे इसको जियोडेटिक डाटम कहेंगे और इसको वर्टिकल डाटम कहेंगे। इसमें भी यही है कि बेस्ड ऑन द इलिप्सॉइड्स एंड जियोइड मॉडल देयर आर लोकल डाटम्स एंड देयर आर ग्लोबल डाटम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ऑल राइट, सो जियोडेटिक या हॉरिजॉन्टल डाटम, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो नेटवर्क ऑफ जियोडेटिक कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स मीन जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पर, जैसे आप एक हॉरिजॉन्टल कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं आप सर्वेइंग के अंदर, तो वो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल आप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, थ्रू ट्राईएंगुलेशन या ट्राईलिट्रेशन जो है उसके आप मतलब जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं उसको यूज करके फिर आप क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का हॉरिजॉन्टल कंट्रोल जो है वो आप एस्टैब्लिश करते हैं। सिमिलरली on global basis we have different points or benchmarks, those are used to I mean to create the you can say global geodetic जो है आपका जो कंट्रोल सिस्टम, राइट। तो वो एक नेटवर्क बनता है जिसमें आप क्या करते हैं, और उसमें फिर आप ट्राईएंगुलेशन या ट्राईलिट्रेशन कॉन्सेप्ट्स वही हैं, लेकिन उसको आप बड़े स्केल के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। For example, there are different type of geodetic reference systems established in the world, like horizontal geodetic reference systems, जैसे North American datum है, NAD,
इसे कहते हैं नैड, नॉर्थ अमेरिकन डाटम सिस्टम, नैड 1927 एंड नैड 1983। उसके बाद है एशियन जियोडेटिक सिस्टम है, उसके बाद यूरोपियन जियोडेटिक सिस्टम। तो इस तरीके से ये डिफरेंट जियोडेटिक सिस्टम जो है वो वर्ल्ड में इस्टेब्लिश हैं और ग्लोबल भी हैं। डेफिनेटली वी विल गो फॉर द ग्लोबल डाटम। तो ग्लोबल जो डाटम सिस्टम है उसको कहते हैं वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984, WGS 84। इसको आप GIS की डिफरेंट एक्सरसाइजेज में भी यूज करेंगे। ठीक है कि हम यूजुअली WGS 84 को फॉलो करते हैं पाकिस्तान में भी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ग्लोबल जियोडेटिक डाटम। अब ये जो ग्लोबल जियोडेटिक डाटम है ये आपका जो 83 में अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन जो डाटम था उससे उसको मॉडिफाई किया गया और उसकी बेस के ऊपर फिर जो अपडेटेड वर्जन था वो आपका WGS वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम जो था 1984 का, उसको क्रिएट किया गया। राइट, okay, so similarly you have local geodetics datums like based on ellipsoid that best fit earth surface in a particular area। जो लोकल जियोडेटिक डाटम्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि वो किसी छोटे एरिया को शो कर रहे होते हैं, वहाँ पे बेस्ट फिट होता है आपका एलिप्सॉइड और जियोइड मॉडल। ठीक है, तो सर्वेइंग एंड मैपिंग लार्ज जियोग्राफिक एरियाज, कंट्री, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये आपकी ये जो वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल डाटम है वो आपकी डिफरेंट कंट्रीज की बाउंड्रीज को इस्टेब्लिश करने में, डिफरेंट जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, जो डिफरेंट अदर जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए रीजनल स्केल के ऊपर आप जो है ग्लोबल जियोडेटिक डाटम्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है, सिंपल आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है GIS के अंदर, तो फिर आप उसमें डेफिनेटली जो कंट्री बेस्ड एनालिसिस होगा उसमें WGS 84 जो ग्लोबल है उसको आप यूज करेंगे। ठीक है, सो डाटम्स को डिफाइन कैसे करते हैं, ये मतलब वी मस्ट नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन द रेफरेंस एलिप्सॉइड। जैसे हमने डिस्कस किया कि एलिप्सॉइड कई तरह के हैं, डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डिफरेंट एलिप्सॉइड्स को जो डेवलप किया है, जियोइड्स को डेवलप, उसकी बेस के ऊपर देयर आर डजन्स ऑफ जियो रेफरेंसिंग सिस्टम। GIS में जब आप जियो रेफरेंसिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे जियो रेफरेंसिंग सिस्टम्स नजर आएंगे। ठीक है, तो वो डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने उनको डेवलप किया होता है और उनकी आपस में कन्वर्जन भी हो जाती है। आप एक जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को आप जो है ना वो मीट्रिक सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं, आप उसको किसी और जियोडेटिक जो किसी और प्रोजेक्शंस में जियो रेफरेंसिंग सिस्टम में उसको आप चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है, डिफरेंट जो रेफरेंसिंग सिस्टम है उनके दरमियान कन्वर्जन आपने कैसे करनी है। राइट, तो सबसे पहले आपने रेफरेंस एलिप्सॉइड को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने डाटम का ओरिजिन बताना है कि ओरिजिन क्या है, जैसे ग्रीनविच है। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपका लॉन्गिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड अगर आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ली है तो उसमें लॉन्गिट्यूड का ओरिजिन क्या है, एजमत की ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, जैसे कि बेरिंग आप किसी लाइन की लेते हैं तो उसकी ओरिएंटेशन, ठीक है, एडजस्टमेंट्स फिर आप करते हैं अगर उसमें कुछ, क्योंकि आपने मैप के ऊपर क्या करना है, आपने 3D को 2D में कन्वर्ट करना है, दिस मींस कि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट एज वेल दोस वी नीड टू परफॉर्म। ठीक है, तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये हम खुद नहीं करते, ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है GIS जो है वो उसको वो खुद ऑटोमेटिकली कर देता है, बिकॉज उसके अंदर जो एल्गोरिदम्स हैं, जो कन्वर्जन फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी फीड इन होते हैं। ठीक हो गया। सो सिमिलरली वर्टिकल डाटम, उसमें क्या है कि वर्टिकल डाटम में आप मीन सी लेवल जो है उसको जो है वो रेफरेंस लेते हैं, उसको जीरो एलिवेशन कहते हैं, उसके ऊपर वाली एलिवेशन पॉजिटिव होती है, नीचे वाली जो एलिवेशन है वो नेगेटिव में होती है। जब आप कॉन्टिनेंट्स की तरफ जाते हैं तो आपकी एलिवेशन पॉजिटिव होती है, जब आप ओशन फ्लोर की तरफ जाते हैं, डेप्थ ऑफ द सी की तरफ जाते हैं तो आपकी एलिवेशन नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली वी हैव ग्लोबल डाटम्स, वर्टिकल डाटम्स एंड लोकल वर्टिकल डाटम। सो ग्लोबल में जैसे नेशनल इमेजिंग एंड मैपिंग एजेंसी अमेरिका की जो है, नीमा जिसे कहते हैं, उन्होंने जो डाटम जो है वो उसको वो किस तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ है, वो मीन सी लेवल के हिसाब से। और वो करते क्या है, ग्लोबल सी लेवल ऑब्जर्वेशन सिस्टम, जिससे कहते हैं जी जी स्लो GS लोज। ठीक है, 300 सी लेवल ऑब्जर्वेशन स्टेशन। अब इसने इस सिस्टम के तहत देर आर मोर देन 300 सी लेवल ऑब्जर्वेशन स्टेशन, बल्कि मतलब 300 नहीं है, इससे ज़्यादा है। अब तो मेरे ख्याल में ये जो स्टेटमेंट है दिस इज एक्चुअली माइट बी
10 ईयर्स ओल्ड, अब इससे भी ज़्यादा हो गए हुए हैं। तो सी लेवल जो फ्लक्चुएशन है उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये नंबर ऑफ स्टेशन जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं डिफरेंट सीज में, ठीक है, और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो वहां पे क्या होता है कि आप मीन सी लेवल जो है वो जो आपकी जो सरफेस है उसकी फ्लक्चुएशन को नोट करते हैं, ठीक है। और 1 मीटर इसकी एक्यूरेसी, इट मीन के बाद दफा टाइड आपकी 1 मीटर ऊपर चली जाती है, नीचे आती है, या इस तरह से इतनी फ्लक्चुएशन जो है वो पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी इसी से हम देखते हैं कि सी जैसे सी लेवल राइज हो रहा है या नहीं हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक फैक्टर है जो कि मीन सी लेवल को राइज कर रही है। तो ये जो मेजरमेंट्स हैं ये आपको बताती हैं कि मीन सी लेवल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या क्या हो रहा है, मतलब मेल्टिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो उसका ये तो एक एडिशनल स्टडी है जो कि आप मीन सी लेवल की फ्लक्चुएशन से आप उसको जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो ये जो ग्लोबल जो नीमा जो एजेंसी है ये क्या करती है, ये मेक श्योर करती है कि मीन सी लेवल जो है वो चेंज नहीं हुआ, और हमारी जो एलिवेशन है ऊपर नीचे जितनी भी आपने डिफरेंट माउंटेन्स की भी की हुई हैं वो जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। इस तरह की एक्यूरेसीज को देखने के लिए, चेक करने के लिए मीन सी लेवल की फ्लक्चुएशन को सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिश्ड है। और ये जो सारे जो सिस्टम है डिफरेंट जो ग्लोबल सिस्टम है ये नेटवर्किंग के थ्रू इंटरकनेक्टेड है, ठीक हो गया। लोकल सिमिलरली लोकल जैसे नॉर्थ अमेरिकन वर्टिकल डेटाबेस को NAVD कहते हैं, उसमें पिछले में हमने जियोडेटिक पढ़ा था, नॉर्थ अमेरिकन उसको NAD कहते हैं, इसको NAVD NAD कहते हैं, ठीक है। All right. So now here we come to the types of coordinates. So this is another important thing कि हम लोग मैप्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स की और एलिमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने जियो रेफरेंसिंग देखी, जियो रेफरेंसिंग के बाद हमने देखा कि डेटम्स क्या होते हैं, डेटम्स कहाँ से आए, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया। अब आप आ जाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर कि कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह के हैं और कैसे उनको यूज करते हैं। So there are three type of coordinate systems. सबसे पहले है प्लानर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें प्लेन रेक्टेंगुलर सिस्टम है, या कोई इसमें प्लेन पोलर है। फिर उसके बाद इसे हम कार्टेशियन भी कहते हैं, प्लानर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। और ये कैसा होता है, इसमें आप क्या करते हैं, एक्स वाई आपके पास स्केल होता है, जैसे कि आप ग्राफ के ऊपर परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स का डाटा आप उसके ऊपर जो है वो आप उसके ऊपर प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करके आप कोई भी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, राइट। सो दिस इज, और किसी भी पॉइंट की जो जो लोकेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद उससे रिलेटेड आपके पास वाई की वैल्यू होनी चाहिए। एक्स और वाई की बेस के ऊपर आप किसी भी पॉइंट को इस सिस्टम के तहत आप क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लानर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और बाद दफा इसी की एक टाइप है पोलर। पोलर में आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक पॉइंट ये है, अब इसको आप यहाँ से एंगल की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करते हैं कि वाई एक्सिस से कितने एंगल पे ये जो आपका पॉइंट है, और इस पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है, और उसके बाद ये कि आप इसके साथ एंगल कितने एंगल पे ये यहाँ से ये इस एरिया मतलब किस पॉइंट किस एंगल के ऊपर ये पॉइंट जो है वो सिचुएटेड है। सिमिलरली एक्स एक्सिस से कितने एंगल के ऊपर है, तो इस तरीके से आप जो है वो लोकेशंस को डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये है आपके पास प्लानर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली यू हैव जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है जैसे कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला है, ग्लोबल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे हम कहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकॉज इट इज 3D। all the grids having longitude and latitude, those are placed on a 3D map। 3D मैप कैसे है, जैसे ग्लोब आपके पास आता है, ग्लोब के ऊपर ये सारे आपके कोऑर्डिनेट्स लगे हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसको इसमें जो मेजर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बेस के ऊपर, ठीक है। Similarly, there is another type of coordinate system. Those are called as projection coordinate system। प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें आपके पास आप उसको प्रोजेक्टेड कह सकते हैं, प्रोजेक्टेड, ठीक है। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं वो क्या होते हैं कि वो आपके मतलब जो 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं।
राइट। A projected coordinate system क्या है, project Earth's spherical surface onto a two-dimensional Cartesian, ठीक है, Cartesian coordinate plane, मतलब वो आप इस तरफ आ जाते हैं, ये भी 2D है, ठीक है। कार्टेशियन क्या है, वो यही चीज हमने डिस्कस की कि किसी भी पॉइंट को आप एक्स वाई के थ्रू आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी डिटेल है। उसके बाद ये पोलर है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कार्टेशियन की एक अनदर एग्जांपल, ठीक है, ये आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली यू हैव अ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि इट इज कंपोज्ड ऑफ longitude and latitudes, and actually longitude and latitudes are the angles in degrees measured from the earth's center to a point on the earth's surface, ठीक है। this is actually the definition of the longitude and latitude। ये already हम सिस्टम से familiar हैं, इसलिए इसको quickly हम pass on करेंगे। तो इसमें है क्या, the lines encompass the globe and form a gridded network called gratitude। ग्रेटिट्यूड क्या है कि जो एक्चुअली ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लाइंस हैं, ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस हैं और लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और इसकी मदद से ग्रिडेड नेटवर्क बन जाता है आपके ग्लोब के ऊपर, जिसको आप कहते हैं ग्रेटिट्यूड, ठीक है। अब इसमें इक्वेटर क्या है, इक्वेटर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइन ऑफ जीरो लैटिट्यूड, line of zero latitude is called as equator। And then what is meridian, line of zero longitude is called as meridian। And there is another terminology that is called as prime meridian, right। So prime meridian is that passes through Greenwich, ठीक है, NGEO। नेक्स्ट आगे जो फिगर है उसके ऊपर गिवन है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है, जैसे ग्रीनविच का वो पॉइंट है जहां पे आपके इक्वेटर और जो ये जो मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जीरो वाले, वो आपस में क्रॉस करते हैं इक्वेटर के ऊपर, और वहां पे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हैं वो 0 0 है, ठीक है। ये ग्रीनविच जो पॉइंट है इट इज सिचुएटेड इन इंग्लैंड। द ओरिजिन ऑफ ग्रेटिट्यूड 0 0, इसको ग्रीनविच जो पॉइंट है इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन इंटरसेक्ट, ठीक है, ये वो पॉइंट है। सो अच्छा, यहां पे आप ये देखें कि ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात हो रही है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये क्या कह रहा है, लैटिट्यूड and longitude and latitude are the angles in degrees measured from the earth's center to the point on the surface, ठीक है, of earth। सेंटर से आप मेजर करते हैं, ये देखें आप सेंटर से जब आप इस तरफ आएंगे तो ये जो है ये आपके पास क्या है, ये लैटिट्यूड की लाइन, ठीक है, ये है लैटिट्यूड की लाइन। और यहां से जब नॉर्थ से आप इधर आते हैं तो ये आपके पास है, ये आपके पास लैटिट्यूड जहाँ पे 0 है, उसके बाद फिर आपके पास वर्टिकल लाइंस आती हैं लॉन्गिट्यूड्स की। तो ये ग्रीनविच का पॉइंट है जो आपका सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर करते हैं, ठीक है। तो 0 0 कोऑर्डिनेट्स इसके यहाँ से आए, यहाँ से आप वो कोऑर्डिनेट्स को 0 0 समझते हैं। उसके बाद अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो वेस्ट में जो रीडिंग होती है वो नेगेटिव होती हैं, जो ईस्ट की तरफ रीडिंग है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, जो आपकी जो रीडिंग है आपकी लॉन्गिट्यूड की, ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ कि आपके पास ये देखेंगे ये पूरा ग्रिडेड नेटवर्क है, उसमें ये मेरिडियन है, वर्टिकल लाइंस को मेरिडियन कहते हैं, और जो ये वाली जो लाइन है इसको आप लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक हो गया। और जहाँ पे 0 है, 0 का क्या मतलब है कि जहाँ पे दोनों 0 हैं उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब किसी भी रीडिंग को पढ़ते कैसे हैं, लेट्स सपोज वी हैव दिस एग्जांपल कि हमने क्या करना है कि ये 0 ये आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है, और एक पॉइंट जो है वो लेट्स सपोज कि 45 वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, एक आपका पॉइंट जो है वो 45 डिग्री वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, कितना है 45 डिग्री वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो पहले आपने प्राइम मेरिडियन को डिफाइन करना है, ये आपका क्या है, ये आपका प्राइम मेरिडियन। तो आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टली मूव किया, आपने हॉरिजॉन्टली मूव किया इस तरफ 45 डिग्री वेस्ट की तरफ, ठीक है।
ये आपने वेस्ट की तरफ मूव किया तो ये क्या आ गया 45 डिग्री वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ये यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब आपने 55 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इट मीन्स कि अब आपने लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस पे इस पे आपने अब आपने क्या करना है, लैटिट्यूड वाली लाइन पे ऊपर जाना है। तो यहाँ से अब आपने 55 डिग्री ऊपर जाना है। जब आप 55 डिग्री ऊपर जाएंगे तो आपके पास ये जो पॉइंट है ये आपका यहाँ से इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, ये आपने इस तरीके से पढ़ना है रीडिंग को कि ये यहाँ से आपने 0 0 से शुरू किया। अब आपको पता है कि जो आपका जो है वो क्या कहते हैं उसे जो 45 डिग्री आपने वेस्ट की तरफ जाना है लॉन्गिट्यूडल लाइन के ऊपर, लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर, तो जो लॉन्गिट्यूड लगे हुए उसकी तरफ। तो यहाँ से आप लॉन्गिट्यूड्स की तरफ इधर जाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 45 डिग्री वेस्ट की तरफ चले गए। उसके बाद आपका जो पॉइंट है एक्चुअली वो जो जो आपका जो पॉइंट है वो 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ इक्वेटर के हिसाब से, क्योंकि आप देखिए ये इक्वेटर वाली लाइन है, ये सारी ये इक्वेटर वाली लाइन है। तो आपने ये डिग्रीज यहाँ से पढ़ के तो ये आप 55 यहाँ पे आ गए। तो इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये डिफाइन हो गया आपका, ये जो पॉइंट है वो उसकी ये डायमेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीडिंग्स पढ़ते हैं ग्लोब के ऊपर। ये चीज़ें अर्ली क्लासेस में सिखाई जाती है, तो होपफुली अगर आपको ये भूल गई हुई तो अब आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आई तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, लेकिन आई गेस कि आपको एक्सप्लेन करने की शायद मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी द थिंग्स आर बीइंग रिकॉर्डेड, so you can easily rewind it and then again listen the discussion and you will be understood this concept। ठीक हो गया? All right, so there are important facts those you need to understand about the degree system. So you can just remember this thing: longitude and latitude values are not Cartesian coordinates। Cartesian का मतलब क्या है? ये straight lines। ले तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये कर्व्ड लाइंस है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है? ये कर्व्ड लाइन, ये देखिए ये कर्व्ड लाइंस है। ठीक हो गया? सो इट मीन्स कि जब आप इसको फ्लैट करेंगे तो इसके अंदर डिस्टॉर्शन आएगी। ठीक हो गया? सो इट मीन्स कांस्टेंट एंगुलर डेविएशंस डू नॉट constant angular deviations do not have constant distance deviations। ठीक है, it means 1 degree of longitude at the equator is not equal to the 1 degree of longitude near the poles। this is very important। वो कैसे? अब ये देखिए कि आपकी जो ये देखिए ये जब आप इक्वेटर की तरफ आते हैं तो ये स्क्वायर देखिए ये कितना मतलब ये काइंड ऑफ स्क्वायर है। लेकिन यही देखें अगर आप इसी को आप यहाँ ले जाएं तो ये देखिए ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये आपकी काइंड ऑफ ट्राइंगल बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी लॉन्गिट्यूड की इक्वेटर के ऊपर जो डिग्री इक्वल है वो आपकी इक्वेटर के वो आपकी यहाँ पे 1 डिग्री इज नॉट इक्वल टू नियर द पोल्स। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर इज नॉट इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ नियर द पोल्स। ठीक है, so we are stopping the lecture 1 over here, and we will come back to the same points in the lecture 2। So thank you।